back to my YouTube channel NK Tutorial. Okay, you know that we are going to start today a new chapter, that is exponent and power. Okay, so before starting this chapter start करने से पहले हम जानने की कोशिश करेंगे what is the concept behind this chapter. कौन कौन से concepts हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, कौन कौन से कीज हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने होंगे. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्सपोनेंट किसे कहते हैं. तो यू नो when you multiply any number, जब हम किसी नंबर कोई नंबर सेल्फ मल्टीप्लाइड हो जाता है many times, then that comes in the form of exponent. वो एक्सपोनेंट के रूप में हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल just look here, 2 into 2 into 2 into 2 into 2. Now just look here, how many times 2 is here? 1 2 3 4 5. 2 self 5 times multiplied हुआ. Okay, so it is, you know what, 2 is raised to the power 5. अब हम इसे करेंगे 2 to power 5 और 2 raised to power 5. So here this is called exponent. ये 2 raised to power 5, here 5 is exponent. ये हमारा क्या है? Exponent. And this 2, ये 2 which is called base. ये base है. 2 raised to power 5. You can just read it here. 2 raised, हम इसे इस तरह से पढ़ सकते हैं, 2 raised to power 5 और 2 to the exponent 5. Got it? हम इसे रूप में भी पढ़ सकते हैं 2 to power 5, 2 raised to the power 5 या 2 exponent 5. Okay? So the power is called exponent. हम पावर को ही exponent कह लेते हैं. Got it now? Now here, so you know just हमने देखा यहाँ पे कि same number कितने times multiply हो गया. After multiplying it forms exponent. Okay? ये exponent बना देता है. 2 to power 5 it is in the form of exponential form. ये exponential form में हो गया. Okay? Now let's understand, you know, some laws. कुछ laws हम पढ़ेंगे related to exponent. Law that is called laws of exponent. उसे हम कहते हैं laws of exponents. So let's understand some laws of exponents. Here you can also, just I'm giving you one more example. 10 to power 5, 10 exponent 5 or 10 raised to power 5. You can write on here 10 into 10 into 10, 10 into 10. Got it? This is in the form of exponential. ये exponential form में है और इसे हम expanded form में written कर दिए. Got it? Now अब हम क्या करेंगे? Some laws of exponent को read करेंगे. Means we will learn here some laws of exponent. Laws of exponents को हम यहाँ पे कुछ देखेंगे, learn करेंगे कि laws of exponents किसे कहते हैं. But remember one thing, just to understand, सिर्फ वीडियो को वॉच करने से ही काम नहीं चलेगा. Just take out your notebooks, means sit with notebooks and pen. Notebooks और पेन के साथ बैठे और साथ साथ इसे रिटन भी करेंगे, so that you can learn it very perfectly. माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. ओके, सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में फर्स्ट लॉज क्या है? a to power m into a to power n. a to power m into a to power n is equal to a to power m plus n. Just understand here, when here base is same, दोनों में base same है, power is different, इनकी जो power है वो different है. Okay? And in the form of multiply, ये multiplication के form में है. In that case हम simply base, single base return करते हैं, तो means common ले लेते हैं और power को हम simply add कर देते हैं. Got it? For example here, 2 to power 3 into, example है 2 to power 3 into 2 to power 5. 2 to power 3 को and 2 to power 5 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे रिटर्न करेंगे, मींस अदर फॉर्म में हम फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे इसे. तो जस्ट लुक हियर, बेस इज सेम, दोनों में बेस सेम है, सो राइट ऑन वन बेस, एक बेस को रिटर्न करेंगे बिकॉज इन द फॉर्म ऑफ ये हमारे एक्सपोनेंट्स को हम सेम एक्सपोनेंट्स मीन सेम बेस है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है हम, सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला. इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, मींस वी विल ऐड हियर पावर, दैट इज 3 plus 5, so 2 to power 8. Got it? It's clear? Now let's see the next laws. अब हम next laws को देखेंगे. a to power m divided by
power n. You know, a to power m divided by a to power n is equal to what? A to power m minus n. Just remember here, just look here carefully. आप यहाँ ध्यान से देखें, bases same है, okay? Power different है, and it is in the form of division, और यह division के रूप में है. So when bases is same, okay, and it is in the form of division, power different हो, then we write on simply here एक सिंगल बेस रिटर्न करेंगे, that we will take as common, उसे हम कॉमन लेंगे और पावर्स को हम माइनस कर देंगे. Got it? For example, 5 to power 3 divided by 5 to power 2. Okay? How will you write on? हम कैसे रिटर्न करेंगे इसे? सेम बेस सेम है, so write on one base. Then there will be minus, हम पावर्स को क्या करेंगे? माइनस करेंगे. So 3 minus 2 is equal to 5 to power 1. That is 5. Clear? Now let's see the next laws of exponent. That is a to power m to power n is equal to a to power m into n. When जब एक पावर के ऊपर एक और पावर हो, okay, then that, you know that हम सिंपली इसमें दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं. जस्ट लुक हियर, 2 to power 3, 2 to power 3 here, 2 to power 3, 2 power 4, 2 to power 3, 2 power 4. here पावर के ऊपर एक पावर है, तो हम क्या करेंगे? you know, simply we will write on here base. सबसे पहले हम बेस को रिटर्न करेंगे और ये दोनों पावर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट लाइक here 3 into 4. so it will be 2 to power 3 4s are 12. क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? नाउ लेट्स सी द फोर्थ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. अब हम फोर्थ लॉज को देखेंगे. गेटिंग इट नाउ? देयर इज नो एनी डॉट. Now the fourth law is a to power 0 is equal to what? 1. a to power 0 is equal to 1. For example here 7 to power 0. जब भी 7 का पावर या किसी नंबर का पावर सिंपली 0 हो, then we will write on here 1. 2 to power 0 is equal to 1. a to power 0 is equal to 1. Got it? Clear हुआ? Now the last one here is a to power a into b, sorry, a to power m into b to power m. Just look here. यहाँ ध्यान से देखिए, बेस इज डिफरेंट, यहाँ पे बेस बिल्कुल डिफरेंट है, ओके, बट पावर इज सेम, पावर सेम है. इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर को एक सिंगल हम कॉमन लेंगे. सो a इंटू बी टू पावर m, a को हम कॉमन ले लेते हैं. मीन्स सिंपल जो हमारे जो पावर्स हैं, सेम पावर्स, उसे हम 1 ले लेते हैं कॉमन. देयरफॉर वी कैन राइट ऑन हियर one more example. Just let's understand. 4 to power 3 into 5 to power 3. Just look here. Here base is different but power is same. So we are going to apply same formula. हम सबसे पहले बेस को मल्टीप्लाई करेंगे 4 into 5 and out of these two जो कॉमन हमारे पास एक्सपोनेंट है, पावर है, उन दोनों कॉमन में से मींस सेम एक्सपोनेंट में से एक एक्सपोनेंट को हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे. ओके, नाउ इट विल बी 4 5s are 20, 4 5s are 20 and here power 3. Okay, now also remember there is one more, एक और है which you should know. a to power minus m, a to power minus m जब हमारे पास एक्सपोनेंट्स माइनस में होते हैं, ओके, जब भी हमारे एक्सपोनेंट माइनस में हो तो हम सिंपली उसे रेसिप्रोकल कर देते हैं. इट विल कम इन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव में आ जाएगा. सो 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन a टू पावर m, ओके, इन द फॉर्म ऑफ दिस. इस फॉर्म में हम इसे रिटर्न करते हैं. फॉर एग्जांपल 5 टू पावर माइनस 2, 5 टू पावर माइनस 2 को हम कैसे सोल्व करेंगे? यू नो, सिंपली हम क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल लेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे एंड हियर
इट विल बिकम पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ जाएगा हमारा। दिस पावर मीन्स जो हमारा माइनस में है एक्सपोनेंट दैट विल कम इन पॉजिटिव। सो वी कैन ऑल्सो राइट डाउन हियर 1, 5 टू टर्म्स है, सो 5 into 5 और 1/25। गॉट इट? क्लियर? I hope you will be getting it. There is no any doubt. Now let's see how to convert some. कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं जो बहुत ही लॉन्ग होते हैं, यू नो, तो हम उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? हाउ विल कन्वर्ट मीन्स हम उसे कन्वीनियंटली कैसे यूज करेंगे? यू नो, एक्सपोनेंट्स के एक्चुअली जो यूज होते हैं वो हमारी कैलकुलेशंस को कन्वीनियंटली यूज करने में काम आते हैं। ओके, हम जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट लुक हियर दिस वन 150 ये क्वेश्चन है, हम इसे क्या रीड करेंगे? लाख, मिलियन, करोड़, व्हाट? ओके, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड, इसे रीड करना बहुत डिफिकल्ट है। 1, 10, 100, 1000, यू नो, देन इन दैट कंडीशन हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को यूज करते हैं सो दैट इट मीन्स हम जो है इसे सिंपली प्रोनाउंस कर सके, हम सिंपली इसे पढ़ सके। फॉर एग्जाम्पल हियर 115 इंटू, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 के बाद कितने जीरोस हैं काउंट करेंगे? 0 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, देयर इज 13 पावर। सो 10 हम सिंपली यहाँ पे एक और जीरो देंगे, 10 to power 13। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड form. This is called standard form. Got it? Now it can be also, just look here, 0.000007. अब हम इस कंडीशन को यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे रिटर्न करेंगे? सो इन दैट कंडीशन हम क्या करेंगे? सिंपली 0.000507, यू नो, इस डेसिमल को हम रिमूव करेंगे, ओके, एंड जस्ट इन द प्लेस ऑफ डेसिमल की जगह पे 1 यूज करेंगे। We will write 1 and after decimal how many digits? 1 2 3 4 5 6, so 6 zeros, 1 2 3 4 5 6. Now it will be here 7 by, because this there is no value of now these zeros, अब ये zeros का कोई वैल्यू नहीं रह गया। Now here 10 to power कितने zeros? 1 2 3 4 5 6, 10 to power 6। Now we can write down, अब हम इसे इस 10 to power 6 को ऊपर लेकर जाएंगे, so it will be here 7 into 10 to power minus 6। okay, when we just take, जब हम डिनोमिनेटर से उसे न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे then powers become negative, और न्यूमरेटर से हम डिनोमिनेटर में लाएंगे then powers become positive। got it ना? so I hope you will be getting it, there is no any query। आप बहुत अच्छे ढंग से, this was your introduction class, ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी। I hope you will be understanding the concept which I taught you. So I'll meet you in my next video with new exercise, that is exercise 12.1. Till then, keep on practicing. Bye bye.